चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ट्रांसक्रिप्शन नंबर 200। बी रेडी। 5 4 3 2 1 start. Sir, food problem has been the greatest worry of our life during the last 10 years, and unfortunately efforts for its solution seem always to have gone away. In the present state of price index, the imposition of excise duties or their increase on essential commodities has an adverse effect on the common man. Poor taxpayers talk of the income tax evasion to the extent of several hundred crores of rupees, and they say that if the Income Tax Act were strictly and honestly administered, there would have been no need of increasing the burdens of the people of low income groups and of raising excise duties on articles which are more the needs of the poor men than of the rich classes. The common man has, however, been found to be a passive victim of the taxation policy of the government. Others express their grievances in 101 different ways and demand their redress. They lodge their protests on the slightest pretext to have their burdens made lighter, but the poor taxpayer takes every encroachment on his already depleted household budget without any fuss. And there is no denying the fact that indirect taxation has been increasing year by year and has been causing a great hardship to the families of low income groups. Moreover, sir, excise duties rope in all the people, good, bad, or indifferent. By this I mean to say that whether the people have been benefited by the planned outlay of about rupees 900 crores a year or not, whether they have remained unaffected by the development schemes or whether their finances have worsened as a result of any such schemes, all have to pay the duty imposed along with the middleman's profits, whatever he may be disposed to charge. The Honorable Minister is said to have stated that the effect of his taxation proposals on the common man would be very marginal, and the traders' present margin of profit should absorb much of the increase. He is said to have made a similar statement on another occasion also. But I am sorry to say that this is contrary to what actually happens. Most traders will not only pass on the whole of the tax to the consumer but will also raise the prices sufficiently high so as to make additional profits in the bargain which they make. It will therefore be well for the Honorable Minister to take from the very beginning all necessary steps to prevent traders from exploiting the consumers. A directive should be sent round right now and sufficient publicity given to it so that the ignorant masses may not be asked to pay more than the correct prices.
the prices are already soaring high at the ceiling level, and effective steps should be taken to check further rise, lest the whole structure of economy should be shaken to the core. In addition to the fair price shops for food grains, there should be fair price shops for other articles of merchandise also, like clothes, etc., so as to stabilize prices and have been pegged at a reasonable level. It should, however, be noted that when taxation proposals are looked at in the context of the 10th five-year plan, they relate a different story. It is found that they are intended to impose an austere living on the people so as to save more for the plan. It is said that excise duties have been directed towards limiting consumption of the lower middle classes and the masses more as a measure to check inflation rather than for the purpose of augmenting revenue. The Honorable Minister once stated that the duty on sugar had been deliberately raised because he wanted consumption to go down or rather not to increase. He said, I would like to freeze it at more or less the present level, unless it be that as income goes up in certain sectors, they want to pay the price. The finance minister's anxiety to freeze the consumption in the absence of sufficient quantities of consumer goods to go round that section of the people whose purchasing power is increasing as a result of the plan outlay of about rupees 900 crores a year is quite understandable. Our administrative machinery is not sufficiently competent and efficient for complete control, and unless the production of consumer goods is commensurate with the investment in the country, the inflationary pressure will persist and prices will rise. When the mills and factories which are being established in the earlier years of the plan go into production, there will be plenty of consumer goods to absorb the surplus money in the hands of the people, and the need of price control by means of the imposition of excise duties will come to an end. It is hoped that the minister will reduce these duties at that time. As for the implementation of the plan, nothing extraordinary had happened to make us feel nervous about the fulfillment of the targets. Stop. अब आप जल्दी से इसकी लास्ट लाइन सबसे पहले लिखें ताकि आपकी लास्ट लाइन कभी भी डैमेज ना हो. ठीक है, जल्दी से इसको लिख के उसके बाद इसको रिटर्न करें और उसके बाद हम चलते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स के ऊपर. तो स्टार्ट करते हैं हम डिफिकल्ट वर्ड से. ठीक है, सबसे पहले वर्ड अब जरा ध्यान से देखिए आप. ये आपने लगाई लाइन, सॉरी, ओके, ये आपने लिखना है ग्रेटेस्ट. ठीक है, तो यहाँ पर ई की बिंदी डाल दो. एफर्ट्स जब आएगा, एफर्ट्स में आपने छोटा सा एफर्ट डाल के ई की बिंदी जरूर डालनी है. तो ग्रेटेस्ट एफर्ट्स हो गए. ठीक है, उसके बाद वर्ड आया है एक इम्पोजिशन. तो ये इम्पोजिशन आपने ऐसे करके ई की बिंदी अगर इसके ऊपर आप लगाते हो तो याद रखना है ये जो इम्पोजिशन वर्ड है ये आपका कभी खराब नहीं होगा. ये ई की बिंदी जो है तो द वर्ड विल डेफिनेटली बी सर्वाइव्ड. क्या होगा यहाँ पे ई की बिंदी के साथ इम्पोजिशन. ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक्साइज ड्यूटीज. देखिए दो प्रकार से मैं आपको बताऊंगी. एक तो है ये एक्साइज के साथ ड्यूटीज जोड़ दो, यहाँ आई का वोवल डाल दो और यहाँ की ई की बिंदी डाल दो. ठीक है, और अगर आपको और जल्दी करना है विदाउट
एनी टाइम, तो आप ये करो एक्साइज ड्यूटी में, यहाँ पर ये जो आई का वोवल है ये आपको पढ़वाएगा एक्साइज, और यहाँ पे ई की बिंदी। तो आई थिंक इट कैन बी टेकन। तो यहाँ पे आई के वोवल डाल दो बीच में, ई की बिंदी। ये थोड़ा आपने दुरुस्त डालना है, मोटा, ताकि मोटा डालने से ना आपको एक्साइज पढ़ा जा सके, ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी से हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है एसेंशियल कमोडिटीज। एसेंशियल को आपने ऑन दी लाइन लिख के, एसेंशियल को ऑन दी लाइन लिख के आपने क्या करना है, कमोडिटीज डालनी है। दोबारा देखिए लाइन, एसेंशियल, ये आपने एसेंशियल डाल दिया, उसके बाद आपने कमोडिटीज को ऐसे डाल देना है, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास वर्ड आया है टैक्स पेयर्स, ठीक है। तो आपने टैक्स डाला, पी डाला और ए की बिंदी डाल दो, ये आपका हो गया टैक्स पेयर्स, ठीक है। टैक्स पेयर को जो इवेजन है, इवेजन के लिए आपने इवेजन के लिए आपने कैसे करना है, ये इविएशन और यहाँ पर ई की बिंदी, तो आपको ये पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, फंक्शन जो है आपने हमेशा बिलो द लाइन शन डालना है, ऐसे एन और शन, ई की बिंदी डालो ना डालो। फंक्शनिंग में आपका यहाँ पे ई की बिंदी पीछे आ जाएगी, इंग। तो फंक्शन को ये आप प्लीज इसको आप ले लो, वर्ड को, बहुत अच्छा वर्ड है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेना इसकी, एक आधे से एक पेज की प्रैक्टिस करना इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। इससे क्या होगा, आपका हाथ बैठता रहेगा, और जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको साथ के साथ आपको हर वीकेंड के ऊपर वर्ड्स की प्रैक्टिस फिर से सारे के सारे एक बार लिख लो अपनी कॉपी में और से करते रहो, ठीक है। अगला मैं आपको वर्ड बता रही हूँ, ये वर्ड है, देखिए इनकम, ठीक है ना। इनकम हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इनकम, फिर टैक्स आ जाएगा और नीचे एक एक्ट आ गया, ठीक है। तो आपने कैसे लिखना है, इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। तो ये हमेशा, ये अबव द लाइन हो गया, ठीक है, और ये हमेशा आपने 2 लाइनें टिक जरूर देना है। अब हमने लिखना कैसे है, देखो ये ध्यान से देखो, आप इनकम करके आपने डैश डालना है, फिर टैक्स को हमेशा टी छोटा, इनकम टैक्स होगा, और एक्ट का ए बड़ा, ऐसे यू हैव टू टाइप इट इन द एग्जाम, ठीक है। उसके बाद वर्ड आता है आपका ऑनेस्टली। ऑनेस्टली आपने ओ का वोवल डाल दो, ए की बिंदी डाल दो, ऑनेस्टली हो गया। एडमिनिस्टर्ड वर्ड आया है, एडमिनिस्टर्ड वर्ड डाल दो, ए की बिंदी जरूर डालो, ठीक है। ये आप ये जो है कट है ना, ये कट इट विल सेव योर ईडी वर्ड, ठीक है। तो एडमिनिस्टर्ड हो गया। फिर आता है लो इनकम, ठीक है, ग्रुप्स, ये आप ऐसे इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं हाई, ठीक है, ऐसे हाई करके फिर इनकम ग्रुप्स, इसी के साथ जोड़ दो, इसके साथ जोड़ के भी बना सकते हो, हाई इनकम ग्रुप्स, ओके फाइन, बट आई मस्ट बी यूज, ठीक है, आई को जरूर जिंदा रखना। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ आप क्या कर सकते हो, सॉरी, इसके बाद देखिए और वर्ड इंपॉर्टेंट जो आउटलाइंस हैं इसमें, उसमें हम लिख सकते हैं पैसिव, ठीक है। तो पैसिव के लिए आपने क्या लिखना है, ऐसे, ये आपने लिख दिया, ठीक है, पी एस और वी, यहाँ पे एक बिंदी, ठीक है, पैसिव हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका विक्टिम। क्या वर्ड है, विक्टिम, KTM, विक्टिम। उसके बाद आपके पास आता है टैक्सेशन पॉलिसी, को पी से काट दो, बस ये आ गया आपका टैक्सेशन पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ड आया है एनक्रोचमेंट, ठीक है, एनक्रोचमेंट, ई की बिंदी आप डाल सकते हो अगर आपको नहीं पढ़ा जाता तो, ठीक है। उसके बाद वर्ड आया है इंपॉर्टेंट डिप्लीटेड, ठीक है, ई की बिंदी यहाँ आपने बनाए रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है हाउस होल्ड, तो ये ओ का वोवल इसमें बहुत नेसेसिटी वाला है, ओ का वोवल आपको इस वर्ड को मरने नहीं देगा, ठीक है, हाउस होल्ड। बजट, अगेन मैं दोबारा बार बार आपको बोल रही हूँ, बी को आपको काटोगे तो डेफिनेटली आपको बजट कभी गलत नहीं होगा, किसी और से इसको ये आप क्रैश नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद वर्ड आया है बारगेन, ठीक है, तो यहाँ पे ए की बिंदी आप लगा दो, ये 2 बिंदियों में से कोई भी विच एवर यू लाइक एंड यू विल बी कंफर्टेबल इन दैट। और हार्डशिप वर्ड आया है, बहुत प्यारा वर्ड है, हार्डशिप की आउटलाइन की तैयारी कीजिए। इनडिफरेंट जो है उसको आपने क्या करना है, इनको डी से काट दो, बस इनडिफरेंट आ गया, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो मैं अब आपको वर्ड बताने जा रही हूँ जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं आधे स्टूडेंट, वो कौन सा वर्ड है, वो देखिए वो कौन सा वर्ड है, ये वर्ड है आपका बेनिफिटेड, काट दो, बेनिफिटेड, BENEFITED, डबल टी नहीं डालना, बेनिफिटेड, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाता है मिडल मैंस, ठीक है। तो इसमें मैंस है, तो मैंस में आपने ऐसे करके डालना है, ठीक है, मैंस। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेटेड में हमेशा अलग करो और स्टेटेड को ऐसे लिखो, ठीक है। अब मैं सब्जेक्ट फिर से आपको बता रही हूँ, सब्जेक्ट को गर्दन से काट के रखना ताकि आपका सब्जेक्ट को किसी और वर्ड से आप क्लैश ना करो, ठीक है। एक वर्ड इसमें आया है वर्सन्ड, ठीक है, तो वर्सन में ऐसे करके भी आप
ऐसे करके इसको काट सकते हो, ये वर्सन, ठीक है। वर्सन एज ए रिजल्ट बड़ा अच्छा वर्ड, मैं आपको छोटा सा आपको बताती हूँ, एज करके ना एल ऊपर डाल के एल टी हो जाएगा, ये का वोवल, ये बहुत प्यारा वर्ड है, एज ए रिजल्ट ऑफ दी, ऑफ दी करना है तो ये लो, ये कर लिया, बस ये इतने सारे वर्ड इतने में ही समा जाएंगे अगर आपने तैयारी कर ली थी, एज ए रिजल्ट ऑफ दी, ये का वोवल। तो ये सारे करिए और इसको प्लीज़ आप जल्दी से समझ के अच्छे से तैयारी करके इसको फिर हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, डिक्टेशन की तरफ। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आपको दोबारा मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिल सके और वो क्लासेस चलती रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच।